Hello everyone, welcome to Legal Anecdotes. Today we are going to discuss a new topic, that is the three new criminal laws which are recently introduced in Lok Sabha and then passed in Lok Sabha and then passed in Rajya Sabha, and there is a assent of, after that there is a assent of Mr. President. And today we are going all the things which really important to get the knowledge of this, all the three bills, and we discuss all three bills one by one, and what are their advantage, what are their plus points, what are their negative points. Okay, so let's start it. Before starting this video, we are going to welcome our new friend, that is Mr. Danish Khan. Hi Danish. Hi. Danish here danish here to join us in this new video. So let's start the video with the questions, and we will give you answer. So what is the news? Hey everyone, my name is Tanish. So what's the news all about? So there's an introduction of three criminal laws basically. There's a change in, actually not change, there's a new bills in आईपीसी की जगह बेसिकली भारतीय न्याय संहिता पेश की गई है एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा इन इन प्लेस ऑफ सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य बिल पेश किया गया है. तो व्हाट्स द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट? So during the passing of these three bills, there were the 97 suspended opposition MPs. So सवाल ये उठता है कि जब 97 opposition MPs सस्पेंडेड थे तो उस समय क्या जरूरत थी इस बिल को पेश करने की? तो ये अपोजिशन के द्वारा ये सवाल उठाए गए हैं. बेसिकली ये रेजिस्टेंस तो उठना ही था. और गवर्नमेंट जो है हमारी इस समय बीजेपी रूलिंग की, उसमें वो एक तरीके से कॉन्फिडेंट है इस बिल को लेके, because they know they will gonna win the election, so they are confident that they will pass the bill after the election. So Okay, sort of continue. so government confidence, you talk about government confidence. So what do you think, how much government is confident about this, all these bills? Do you have any point in this? Do you have any views about it? Yeah, the government is very confident because the basic value they are which they are imposing, that these are the colonial rules, okay, Okay. and there is a wave against these colonial mindset. तो पब्लिक को ये लगता है कि जितने भी कॉलोनियल रूल्स हैं वो गलत है बेसिकली. तो Okay. गवर्नमेंट का ये विचार है, गवर्नमेंट का ये सोचना है कि सारे जो कॉलोनियल रूल्स हैं उनको हम आराम से हटा सकते हैं और इसके खिलाफ कोई अपोजिशन कर भी नहीं सकता है. तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. Okay. So बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पे. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस बिल्स एंड अबाउट जो भी इन बिल्स के बारे में चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें, इनको स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेना चाहिए था. इसके पीछे क्या चीज़ें हैं, कैसे जो शुरुआत के आईपीसी सीआरपीसी ये सब चीज़ आई थी, वो कैसे आई थी इंडिया पे, या फिर कैसे चीज़ें शुरू हुई थी. थोड़ा सा डिस्कस करें, या फिर कुछ चीज़ों से सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा कि आगे की चीज़ें पढ़ने में. फिर वी शुड नो द हिस्ट्री ऑफ ऑल दीज बिल्स. So, Mr. Sen, what do you think about what you know about the history a little bit, I think. So, can you please elaborate what you know? Yeah. So the history of legal system in India is not a new theory. It is a very old theory. So when did it started? It started in the early days when the monarchy system was there. There was no democracy in the country. So the legal system in that period was very different from how it is now. तो पहले क्या होता था, जैसे कि किंग होते थे तो उनके अलग लॉज होते थे. अब उनके लॉज में क्या होता था कि राजा ने जो बोल दिया वो ही लॉ होगा. पब्लिक की कोई ओपिनियंस नहीं थे इसके ऊपर. What the king used to say was the only and the basic law which worked on all the citizens. तो ये बहुत टाइम पे चला आ रहा था till the British came to India. When the Britishers came to India, they brought new theories and new ideologies like democracy, liberty, equality, fraternity. क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जैसे फ्रांस में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर पूरे यूरोप में फैला. तो ब्रिटिशर्स came with this ideologies in India. So try transform the Indian legal system
from how it was working in early days and from how it is nowadays. तो ये पूरा क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है क्योंकि उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन्होंने अपना नया लीगल सिस्टम दिया क्योंकि उनको लगा कि अगर इंडिया में रूल करना है तो इंडिया को पहले सिविलाइज करना होगा। सिविलाइज कैसे होगा? जब वहां पे लीगल सिस्टम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो 1860 में उन्होंने इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी, जो अभी चेंज हो चुका है, उसे इंट्रोड्यूस किया। सिमिलरली 1872 में उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो अभी भी ये भी चेंज हो चुका है, जिसमें आईपीसी में उन्होंने पूरे पिनल कोड को इस्टेब्लिश किया कि सारे जो क्रिमिनल लॉज होंगे उनको बनाया, कि कैसे कैसे सजा दी जाएगी, पनिशमेंट का तरीका बताया जाएगा, और जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया आईपीसी में। एविडेंस में इंट्रोड्यूस किया कि कैसे कैसे आप एविडेंस कलेक्ट करोगे किसी भी क्राइम सीन से, या फिर जितने भी कोर्ट में एविडेंस पेश करने का तरीका होगा, ये सारी चीजों को एक लॉ बना के प्रॉपर रूल के साथ इंट्रोड्यूस किया। और उसके आगे बढ़ा इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि जब 1973 में सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह से ये इंडियन लीगल सिस्टम आगे ग्रो किया है फ्रॉम द अर्ली टाइम, फ्रॉम द किंग्स, जब राजा यहाँ पे रूल किया करते थे, मोनार्की थी, फिर बाद में डेमोक्रेसी आई। तो इस तरह से हमारा लीगल सिस्टम ग्रो किया है और कॉम्प्लेक्सिटी सी बढ़ती गई है एज कम्पेयर टू अर्ली टाइम्स। तो ये हमारे लॉ मेकर्स का जो माइंडसेट था वो भी चेंज हुआ, मोटिव चेंज हुई है, वैल्यू सिस्टम चेंज हुआ है, क्योंकि सोसाइटी बदलती रही है। तो इस तरह से हमारा जो लीगल सिस्टम ग्रो किया है फ्रॉम अर्ली टाइम्स टू नाउ डेज। ओके, मैं इस पे कुछ और 2-3 पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैंने ऐसे पढ़ा है कि द लीगल सिस्टम स्टार्ट विद द चार्टर्स, डिफरेंट चार्टर which was introduced in India, like चार्टर 1726, which really improve जो भी हमारा लीगल सिस्टम था उसे एक तरह से इम्प्रूव करा गया धीरे धीरे। जैसे 70s, तीन जो प्रोमिनेंस थे ब्रिटिशर्स की, जैसे कि मद्रास, आई थिंक मुंबई एंड सूरत। मैं थोड़ा शायद गलत भी हो सकता हूँ, थोड़ी चीज़ों पे ऊपर नीचे हो सकता है हमसे, लेकिन ये जो तीन प्रोमिनेंस है, इस पे बेसिकली इन पे सबसे पहले लीगल सिस्टम को, जो ब्रिटिशर्स लीगल सिस्टम्स को, जो कॉलोनियल लीगल सिस्टम को बेसिकली इंप्लीमेंट करा गया था डिफरेंट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चार्टर्स। तो उन चार्टर्स में एक अलग अलग चीज़ें बताया करते थे कि ऐसे जुडिशरी चलेगी, ऐसे जस्टिस सिस्टम चलेगा, और ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे ऐसे जस्टिस प्रोवाइड होगा सबको। तो इन चार्टर की वजह से शायद मेरे मतलब जो स्टार्टिंग हुई थी लीगल सिस्टम की इन इंडिया में, एक अच्छे स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ लीगल सिस्टम, जो कि एक राजा महाराजों से हट के थी, वही 1726 के चार्टर से शुरू हुई थी। उसके बाद ही बहुत सारे चेंजेस आए, जिसके बाद ये, जैसे उसको तूने बताया, आईपीसी इंट्रोड्यूस हुआ, उसके एविडेंस एक्ट आया, उसके बाद 1972 1973 में जब ये सीआरपीसी आया, ये बहुत लेट, इसे फिर 72 में तो बहुत लेट हो गया था, सीआरपीसी बहुत बाद में आया था। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें। तो व्हाट अबाउट बिल्स? सो बिल्स जो थे, अभी जो इंट्रोड्यूस हुए हैं 3 बिल्स, जैसे कि सैन ने आपको बताया कि आईपीसी से 1860 में आया था, जो कि अब बन चुका है, जो 2023 में जो नया, उसका नया वो इम्प्रूवमेंट, जो कि नया अमेंडमेंट होके नया जो बिल आया, वो जो है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। एंड उसके बाद जो आया दूसरा बिल, सीआरपीसी, जो कि 1973 में आया था, वो अब नया, उसका नया नेम हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल। एंड जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका नाम था भारतीय, अब जो चेंज हो चुका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल। ओके, जो 3 बिल्स आए थे, तो ये एक रणबीर सिंह कमेटी के अंदर, जो अमित शाह हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक रणबीर सिंह कमेटी बनाई थी, मतलब जो इसको हेडेड करा था रणबीर सिंह ने, जो कि पुराने वाइस चांसलर हैं एनएलयू के, एनएलयू दिल्ली के। तो उनको एक 2020 मई 2020 में ये सारे बिल्स, जो कि इन पे इम्प्रूवमेंट होने चाहिए थे, जो कि कोर्ट्स, जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स थे इंडिया में, उन सब के, उनमें जो चीज़ें उन्हें लगा, जो चीज़ें लूप होल्स है, उस पे जो चीज़ें उन्हें लगा कि कॉलोनियल सिस्टम की है, उसके बाद उन्होंने उन सब चीज़ों को देख के नए बिल बनाए, जो कि 3 बिल्स हैं। तो उसके बाद ही उनमें जो इम्प्रूवमेंट्स हुए, जो बहुत सारे इनमें देखो, जो ये नए बिल हैं, बीएनएस या फिर बीएनएसएस, सारे बिल्स में कहीं न कहीं पे लूप होल्स होंगे, इतना तो पक्का है कि, और जिसकी वजह से बहुत सारे सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि करके क्या-क्या इसमें लग रहा है कि क्या-क्या चीज़ें चेंजेस हैं, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं बीएनएस पे, भारतीय न्याय संहिता। So BNS, so Danish, what do you think about that? What are the changes that you basically think that BNS brings in the 2023? Danish, you are not audible. Can you please open your mic?
I'm audible. So the Bharatiya Nyaya Sanhita is in place of IPC 1860. Okay. Basically IPC में 511 sections थे total. And जो new भारतीय न्याय संहिता है इसने टोटल 358 सेक्शन इनकॉर्पोरेट कर लिया एज इट इज भारत आईपीसी से. ओके. जैसे जैसे प्रोविजंस ऑन असॉल्ट एंड मर्डर एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है आईपीसी से. ओके. एंड बस सेक्शंस चेंज किए गए हैं. द नंबर ऑफ सेक्शंस चेंज किए गए हैं इन जो इनकॉर्पोरेटेड वो थे on the basis of severability of crimes. Like the provision of murder was on section 302, and now it is on section 103 of the new Bharatiya Nyaya Sanhita. And there is an incorporation of new terms, new crimes, basically like incorporation of terrorism. First, पहले आईपीसी में कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं थे टेररिज्म के. Like there were mentions of terrorism, but special provisions, special definitions नहीं थे terrorism के. But अब एक particular definition बना दी गई है terrorism से related, and उस पे fixed fine and fixed tenure of punishment fix कर दिया गया है. तो जो terrorism की definition है वो क्या है? तो basically if any act which threatens the integrity of a country or sovereignty of country is terrorism. Like if it is harming the country on monetary basis, like counterfeiting, जो नकली नोट छापे जाते हैं वो भी is a act of terrorism, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को इम्बैलेंस कर रहे हैं बेसिकली. तो ये भी अब इनकॉर्पोरेट कर लिया गया एज अ न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म, लाइक काउंटरफेटिंग ऑफ नोट्स. ओके. एंड इस पे लाइफ पनिशमेंट तक की, लाइफ इम्प्रिजमेंट जो है वो भी प्रावधान हो चुका है. एंड फाइन अप टू 10 लाख रुपीज. एंड न्यू लॉज ऑन मॉब लिंचिंग. बेसिकली जैसे हम देख रहे हैं द इंटॉलरेंस ग्रोइंग इन द सोसाइटी on the basis of basically discrimination हो रहा है, and people are mob lynching. There's a news of mob lynching in our country. So इसके लिए भी न्यू कानून लाया गया है. If anyone commits mob lynching, there's a special provisions in that, and the life imprisonment तक की पूरी सजा दी गई है, and 10 लाख रुपीस के फाइन, up to 10 लाख रुपीस फाइन है. Sorry. And organized crime be introduced हुआ है, like kidnapping, extortion. If someone is doing an organized crime like kidnapping, okay, so उस पे भी प्रावधान लाया गया है. पहले ये आईपीसी में इनका कहीं भी जिक्र नहीं था. And there is introduction of community service, like if you do a petty offense like robbing theft. If you have done a theft of rupees 5,000 up to 5,000, then you have to do community service. There is no punishment. A punishment is a community service. So तुम्हें क्या कुछ ऐसा कम्युनिटी सर्विस काम में है करना, क्या, मतलब कैसा? हाँ बोल. government will order you to do something for the advancement of the community, like you have to serve the nation for some time on ओके, तो the like मेरा एक इस पे क्वेश्चन था. जैसे तूने बोला सर्व द नेशन फॉर सम टाइम, ठीक है. आर्मी आल्सो सर्विंग फॉर अ नेशन फॉर सम टाइम. सो क्या गवर्नमेंट उन्हें आर्मी में भेज सकती है क्या, एक कम्युनिटी नहीं सर्विस की नहीं तरह? नहीं ओके. नहीं कम्युनिटी सर्विस अभी उस पे प्रॉपर डिफिनीशन नहीं आई कि आपको क्या वर्क्स दिए जाएंगे, ओके, तो बट एक आर्मी मेरे में नहीं मेरे दिए हिसाब जाएगा. से मैं जितना समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से, जैसे उन्हें एक ऐसा कुछ काम दिया जाएगा जिससे उनकी एक बेइज्जती टाइप की, और वो ऐसा काम ना करे दोबारा. हाँ हाँ, बेइज्जती भी होगी, और कहीं ना कहीं वो पार्ट बनेंगे सोसाइटी के एडवांसमेंट में. ओके. सोसाइटी के वो- डेवलपमेंट में ऐसा कुछ काम इनको दिया जाए कि सोसाइटी का हाँ, डेवलपमेंट, जैसे कि सोसाइटी फॉर के एग्जांपल अगर डेवलपमेंट आप में. ले लो कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रोड की सफाई कराना, तो ये भी सोसाइटी हाँ के हाँ डेवलपमेंट की या काम है.
तो आप इसको एग्जाम्पल एक तरह ले सकते हो कि इस ऐसा काम दिया जाएगा क्रिमिनल्स को कि आप उनकी बेइज्जती भी हो, एक तरह से डिमीनिंग नेचर भी माना जाता है सोसाइटी में कि यार सफाई करना थोड़ा सा डिमीनिंग चीज मानी जाती है, तो उनको खुद में भी खराब yeah, लगेगा और सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होगी। तो yeah, इस तरह काम और दिया जाएगा। yeah, cause उन्होंने कोई बहुत बड़ा ऑफेंस तो किया नहीं है। उन्होंने एक 5,000 रुपए तक की चोरी या फिर ड्रंक एंड ड्राइव का भी है इसमें है। तो इफ पिटी ऑफेंसेस है देन इट्स एन गुड अल्टरनेटिव फॉर these सोसाइटी। punishments, okay? Yeah. And then हाँ there is हाँ। attempt to commit suicide जो था फर्स्ट आईपीसी में, it was a crime, okay? It was a crime previously. If someone is attempting a suicide, then they have to face a jail for up to 2 years. Now it is abolished. Ab, if you are attempting a suicide, then there is no provisions on or there is no punishment regarding that. ओके। तो ऑल्सो देर इज अ रिमूवल ऑफ अडल्ट्री सेक्शंस, आई थिंक जो अडल्ट्री क्राइम था Yeah, वो yeah, हटा दिया गया शायद आईपीसी में से। और yeah. You want to रेप, add something on adultery? गवर्नमेंट ही ऐड नहीं करा बीएनएस में, मैं क्या ऐड करूँ? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अडल्ट्री में सिंपल जो बात वही थी कि आप अगर मैरिड हो अभी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका चल रहा है किसी बाहर, दैट इज सिंपली कॉल्ड अडल्ट्री। आप बाहर अफेयर चला रहे हो अपना, तो पहले ये क्राइम था। अगर आप मैरिड हो तो आपका बाहर अफेयर चल रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया। और एक मेजर चेंज बीएनएस में जो कि आया, दैट इज द रिमूवल ऑफ सेक्शन 377। ओके कंप्लीटली हाँ। गवर्नमेंट ने इसे अबॉलिश किया है। Next one. ये एक बहुत बड़ा चेंज बीएनएस में लाया गया, क्योंकि 377 वो सिंपली टू इट वाज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट जो कि पहले ही 2017 में गवर्नमेंट ने से अब्रोगेट कर दिया था, दैट वाज द होमोसेक्सुअलिटी पॉइंट ऑफ द 377 सेक्शन, जो फिर लैंडमार्क जस्टिस आया जजमेंट आया था हमारा नवतेज सिंह जोहर केस के बाद। तो उससे उसमें उसने आधा खत्म किया था इस सेक्शन को, लेकिन बीएनएस में गवर्नमेंट ने चेंज करके पूरा ही अबॉलिश कर दिया। बट द रिमेनिंग पार्ट वाज द सेक्शन ऑफ अननेचुरल सेक्स, जो कि बहुत बड़ा इसको मैरिटल रेप जो सेक्शन हमारे आईपीसी में नहीं थी, बीएनएस में भी नहीं है, तो उसके ऑल्टरनेटिव की तरह से यूज किया जाता था और इसका बहुत मिसयूज भी हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 377 के दूसरे जो पार्ट है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। तो ये एक मेजर चेंज था बीएनएस में। ओके। और जो रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट में बेसिकली जो सेक्शन 63 पे जो था, बीएनएस ने सेक्शन 63 जो है उस पे रिटेन कर दिया मैरिटल रेप और उसके एक्सेप्शंस को। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो पनिशमेंट होगी उसके हम्म अकॉर्डिंग मिलेगी, जैसे कि तुमने क्राइम करा है मैरिटल रेप के, जो कि अभी तक नहीं था। तो एक ये बहुत बड़ा चेंज हो हम्म सकता है, जो मैरिटल रेप आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे केसेस आते हैं आए दिन। उसके अलावा सेडिशन हम्म का जो सेक्शन था पहले, सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी Eliminate, था। yeah, क्या? yeah. It was eliminated. Basically, the sedition offenses which are they are actually eliminated, but there is a new law which penalizes and punishes you if you go and speak against the nation. First, अगर तुम कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो इन प्रीवियस आईपीसी सेडिशन लॉ, इफ तुम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हो तो तुम्हें सेडिशन लॉ फेस करना पड़ेगा। नाउ अगर तुम नेशन के खिलाफ कुछ बोलते हो लाइक देशद्रोह, सो ओके यू हैव टू फेस द पनिशमेंट्स। पहले राजद्रोह था एंड नाउ द टर्म इज देशद्रोह। ओके। जिस जो ट्रीजन सेक्शन फॉर वन, इंग्लिश टर्म हाँ मिलता है। हाँ 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 बोल। Yeah. हाँ जी, तो वो ट्रिजन जैसे कि सेडिशन और ट्रिजन में हमने पिछले वीडियोस में इसकी हाँ बात करी थी कि डिफरेंस हाँ। क्या होता है सेडिशन और ट्रिजन पे। मैंने उस बार अपने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था इसके ऊपर। ओके तो उसमें हमने बताया था कि तो गवर्नमेंट ने सेडिशन पार्ट को खत्म कर दिया गया और ट्रिजन पार्ट को रिटेन किया है कि हाँ, अगर आप देशद्रोह करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, पर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते हो या राजद्रोह करते हो तो उसके पनिशमेंट को हटा दिया गया है। okay guys, if you really want to know more about the sedition and treason, you can check our video which we previously made. It is like a podcast between me and Sam, that we are totally discuss about what Yeah. is treason and sedition and how they change our society. Okay, and there is also section which is deal with the seditions, 150, I think section 150 of BNS, which now deal with the section seditions which are under seditions. Okay, now come to the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बाद।
तो बेसिकली जो पहले पुराना सीआरपीसी था वो भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता बन चुका है। ठीक है। तो इस पे बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, जो कि एक एडवांस सोसाइटी में बहुत जरूरत है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। बेसिकली सबसे बड़ा चेंज जो मेरे को लगता है इसमें बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस पे इंक्लूजन करना, इंक्लूड टेक्नोलॉजी का एक इंक्लूड करना सेक्शंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत सारी बढ़ रही है। तो उसके उसके अकॉर्डिंगली हम नए सेक्शन भी ला रहे हैं टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत एडवांसमेंट इन लीगल सिस्टम है। तो इससे जस्टिस सिस्टम में बहुत हेल्प मिलेगी सीआरपीसी में। अगर जैसे टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो ऐसे एफआईआर और जो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर आ गई है। ठीक है। और विटनेस और बेसिकली समन्स, जो समन्स हो रहे हैं, समन प्रोविजंस जो थे, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक ही अब तुम भिजवा सकते हो। इससे पहले समन्स जो होते थे हम एक लेटर के बेसिस में किसी और को भेजा, मतलब पुलिस के द्वारा किसी को भिजवाते थे। और लेकिन अब जो कि अभी चीज़ें सब इलेक्ट्रॉनिक में ट्रांसफर मतलब चेंज हो चुकी है, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो एक ये बहुत अच्छा बिग स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक को उस पे इंक्लूड करना, जो कि एक स्मूथ फंक्शनिंग को मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से दिखाता है सिस्टम को। लीगल सिस्टम के एक स्मूथ फंक्शनिंग को करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है आज के लिए, टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजीज का। उसके बाद मर्सी पेटिशंस में एक अच्छा एक मेरे को लगा कि एक नया नया प्रोविजन आया, जिसके वजह से एक जो मर्सी पेटिशन था उस पे इन्होंने क्या करा है कि अब 30 डेज का गैप कर दिया है प्रेसिडेंट और जो मर्सी पेटिशन जो देगा आदमी। ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा वो 14 डेज ऑफ बिफोर द जो पनिशमेंट देने वाली होगी उसके बिफोर 14 डेज से पहले उसे देना पड़ेगा अप्रूवल, कि उसे मर्सी पेटिशन देनी है या फिर नहीं देनी, मतलब उसे अप्रूव करना है या फिर नहीं करना। उसके अलावा देर इज अ ट्रायल इन एब्सेंटाइ। जैसे कि पुराने जो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन थे उस पर ऐसा दिखाया जाता था कि जैसे अगर तू या फिर कोई भी हम में से कोर्ट नहीं जाता, ठीक है, तो जो जस्टिस सिस्टम होता था वो एक तरह से हल्का-हल्का रुकता था। मतलब कहते थे कि हम जब वो आएगा इंसान तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली अब नए सेक्शंस में ऐसा कर दिया कि जो 90 डेज़ का एक समय दिया गया है, ठीक है? इस चीज़ में कि अगर कोई एब्सेंट होता है, अगर वो 90 डेज़ में भी नहीं आता है या फिर वो ऐसा कुछ अकड़ता है कि मैं नहीं आ रहा है, फिर वो कुछ बहाने बना रहा है हर बार, तो 90 डेज़ के बाद उसे एक तरह से एक जजमेंट सुनाई दिया जाएगा। ये नहीं कि उसके पीछे पड़े रहें कि क्यों नहीं आ रहा, और इससे इससे क्या होगा कि जो केस पेंडिंग रहते हैं बहुत सारे एब्सेंटीज़ की वज़ह से, ज़्यादातर जो बहुत लोग एब्सेंट रहते हैं उनकी वज़ह से केस रहते हैं, रह जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं। तो उसकी वज़ह से भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और जो सेक्शन ऑफ ये एब्सेंटाई है, ट्रायल इन एब्सेंटाई का जो सेक्शन है 355 में, जैसे कि तुम देख ही रहोगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो इन सब में दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद एक और विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। जैसे कि जो विटनेस, जैसे पहले हम देखते थे जैसे बहुत सारे कोई क्राइम होता था या क्रिमिनल कोई ऑफेंस होता होगा या फिर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है किसी के खिलाफ, तो उससे ज़्यादातर जो विटनेसेस होते थे उन पे या फिर उन्हें हटा दिया जाता था। मतलब एक तरह से उन्हें रोका जाता था, उनको एक अपना वहाँ पर क्या कहते हैं उसे, कोर्ट में जाने से, या फिर उन्हें कोर्ट में उनके खिलाफ बोलने से उन्हें रोका जाता था। या फिर कई बार यूपी और बिहार में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता था, मेरे को ऐसा लगता है। अगेन इट्स माई थिंकिंग दैट यूपी में ऐसा बहुत चलता होगा कि उसे मार दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया जिससे वो उसके खिलाफ गवाही ना दे पाए। तो अब ऐसे अब इस पे जो चेंजेस आए हैं सीआरपीसी में, एक विटनेस को एक बहुत अच्छी प्रोटेक्शन दी जाएगी जिससे वो अपना वो गवाही दे पाए, मतलब फ्रीली, उसको कोई डर ना हो किसी को। तो एक बहुत अच्छा एक एक करेक्ट जस्टिस का एक एग्जांपल है। ये करेक्ट जस्टिस प्रोवाइड कराएगा मेरे हिसाब से जो इन लीगल सिस्टम। सो इसके अलावा और कोई ऐड, तुम्हें कोई और पॉइंट ऐड करने हो सीआरपीसी में या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा बेसिकली संहिता जो भी। ट्रायल इन एब्सेंशिया विल हेल्प। जैसे दाऊद इब्राहिम है, उस पे केस हम्म। चलाना है, बट वो अपियर नहीं करेगा उस पे, तो उससे इजी हो जाएगा। जो भी जितने भी देश से बाहर जा चुके हैं, भगौड़े हैं जितने भी, उनके लिए बहुत सही होगा केस चलाने के लिए, क्योंकि वो लोग तो अपियर कर नहीं रहे। और बेसिकली जो क्रिमिनल्स जो छुप जाते हैं क्राइम करने के बाद, फिर उनका वेट नहीं करना पड़ेगा। एंड इससे प्रोसीजर जो होगा काफी फास्ट हो जाएगा हाँ, कोर्ट्स फास्ट में। फंक्शनिंग रहेगी। या या बिल्कुल। और एक और इसका फायदा होगा, जैसे एग्जांपल किसी कोई बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, मान के चलो कि वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई मुंबई के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उन पे किसी दूसरे शहर में, नॉर्थ इंडिया के किसी कोई बहुत दूर शहर में अगर कोई एफआईआर फाइल होती है, तो कोर्ट उन्हें बोलता है कि आप कोर्ट में आके हाजिरी दीजिए अपनी। तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज के अपने टैंट्रम्स होते हैं, वो उसको डिले करते जाते हैं, लेकिन अभी ट्रायल एब्सेंशन से फायदा ये होगा कि उनके एब्सेंट में भी उन पे ट्रायल्स हो जाएगी, और ये पेंडिंग केसेस, सौरभ ने पहले ही मेंशन किया, उसे बहुत फास्ट ट्रैक करने में काम आएगा ये।
कि अब उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अगर वो उसको डिले कर रहे हैं तो उनके आए बिना भी इस केस को ट्रायल पे किया जा सकता है। तो हाँ, ये बहुत अच्छी चीज ये है। बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, वही। उसके मेरे को इस पर हम्म लगता है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का बहुत सही जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। ऐसे एफआईआर में बहुत बार डिले हम्म करते थे, ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती थी कि वो आया नहीं इंसान, या फिर ऐसा कुछ। एफआईआर एक स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जितनी जल्दी मतलब हो जाए उतना ज़्यादा सही है। और वो कैसे भी हो, लेकिन अगर Uh, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही तो और अच्छे से होगी। this includes और ये that ज्यादा yeah, women. हाँ ये This includes that if a woman is facing an mental torture in the house, ट्रॉमा। तो वो भी शायद इसमें कर सकते हैं, हाँ। एफआईआर फाइल कर सकते या हैं। या इट्स हम्म ऑल्सो गिव अस और सेफ्टी। ईएफआईआर से सेफ्टी। फायदे ये भी होंगे कि फायदे ज्यादा ये भी उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कई बार क्या या। होता है, आप अगर रूरल एरिया में रहते हो, आपके पुलिस तक आप पहुंच नहीं पाते हो, लेकिन हम्म। ईएफआईआर से क्या होगा, आप घर बैठे भी एफआईआर कर फाइल कर सकते हो। तो ये बहुत हम्म। जरूरी चीज थी, क्योंकि एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहले आपको एफआईआर करनी होती है। तो एक्सेसिबल जितना रहे आपके पास में, आजकल तो फोन सबके हाथ में आ गए, लैपटॉप फोन सबके पास होते हम्म। हैं, तो वो खुद से अपने घर बैठे भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये या। एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगी इस चीज की, जो कि क्राइम रेट्स को कम करने में बहुत काम आएगा। जितना ज़्यादा एक्सेसिबल होगा ये सब चीज़ें, उतना अच्छा जस्टिस होगा सोसाइटी मेरे हिसाब से। या वही। बिल्कुल। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ समन्स बहुत अच्छी से, जो मेरे को लगता है कम्युनिकेशन होना चाहिए डिवाइसेस का। कई बार ऐसा लगता है कि उसे उसके घर तक पोस्ट पहुंचा नहीं। कई बार ये बहाना लगाते हैं लोग, अगर तुम बिल्कुल। देखोगे कोर्ट्स में, कि मेरे पास तो समन्स आया है, समन आया नहीं, मैं क्यों आऊँ। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉनिकली दिखा दिया तो शायद वो अच्छी तरीके से पहुंच जाए। ओके, सो अब हम्म अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले बिल्स में बढ़ते हैं, जो कि सैन बताएगा तुम्हें। बट इज ओके सैन। हाँ, तो ये जो बिल है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो पहले इसका नाम था वो था इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसे अब चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। ये सिंपली डील करता है कि एक क्राइम सीन से एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाएगा और कोर्ट में कैसे उसे प्रेजेंट किया जाएगा। एविडेंसेस के हम्म। ऊपर डील करता है। कोई भी क्राइम होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लेके चले कि कहीं मर्डर होते हैं, तो वहां से एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट करने हैं, कौन से एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। एक जज जो कोर्ट में जजमेंट दी जाएगी, वो कौन से एविडेंस के बेसिस पे जजमेंट दिया जा सकती है, और सारी चीजों को इस पे डील करता था। तो अभी ये सारी चीजें सेम है, पर उसमें मेजर चेंज जो किया गया है, क्योंकि हमने सीआरपीसी के चेंजेस भी देखे, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंजेस वो किए गए हैं, और वही सिमिलर चेंजेस एविडेंस में किया है, कि साक्ष्य अधिनियम में किए गए, कि टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है इस चीज में। क्योंकि अब क्या है कि हमारे ऐसे सोसाइटी में आ गए हैं कि पेपर का यूज जितना कम हो उतना अच्छा है, और सारी एविडेंसेस जो थे वो टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस आजकल आने लगे थे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, हम्म। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जैसे कोई भी आप एविडेंस कलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अब तक इससे पहले कोर्ट में कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो या फिर कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते थे, लेकिन अब इससे क्या हो गया कि ये कोर्ट में एडमिसिबल होने लगे हैं। इसे हम्म। इंट्रोड्यूस किया गया। रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन, जब पुलिस कहीं क्राइम सीन पे जाती थी तो उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता था पहले, तो वो रिकॉर्ड्स के लिए अब उसे इंट्रोड्यूस किया गया कि आप क्राइम सीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हो और उसे अपने डेटा में रख सकते हो। एडिशन ऑफ मोर स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सिमिलर चीज है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एडिशन बढ़ा दिया गया, उसके जो हाँ। एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन था उसे बढ़ाया गया है। और इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। कोर्ट में जो हम्म। डॉक्यूमेंट वर्क करते हैं, जिन्हें एडमिसिबल माना गया है, तो उसके डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले बोला कि वॉइस रिकॉर्डिंग की बात हो गई, अब कहीं कोई ऐसी क्राइम सीन की या फिर कोई भी आपको एविडेंस, इसमें कॉल रिकॉर्ड की बात हुई है, तो अब कोर्ट में उसे एडमिसिबल माना जाएगा। कॉल रिकॉर्ड आप प्रेजेंट कर सकते हो, आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हो। ऐसी चीजों को पहले कोर्ट में नहीं माना जाता, आप साउंड रिकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इन चीजों को कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा। तो इसका एरिया को, एविडेंस के एरिया को बढ़ाया गया है, जो कि बहुत सही चीज है। और पहले एविडेंस में 176 सेक्शंस थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, और अब हम्म। 170 सेक्शंस हो गए हैं। सॉरी, हाँ। 167 सेक्शन थे, माय बैड। 167 सेक्शन थे और 3 सेक्शन बढ़ गई। कोई खास चेंजेस सेक्शन में नहीं आए हैं, बस 3 सेक्शन पड़े हैं, लेकिन इनका एरिया बहुत बढ़ाया गया, जो कि बहुत सही चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ऐड किया गया। बहुत सारी डेफिनेशन जो इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे एक डेफिनेशन थी एविडेंस के हिसाब, जो एविडेंस की नई नई डेफिनेशन इस पे इंक्लूड करी है प्रोविजंस पे, बहुत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरह से। उसके बाद हम्म सारे सेक्शन एक तरह से तुम देखो कि बहुत एडवांस बनाने की कोशिश करी गई है, सारे बिल्स के अंदर जितने भी सेक्शंस है।
जो कि एक जो करंट सोसाइटी है उसके अंदर चल पाए सारे सेक्शंस। ओके और सो आजकल बिल्कुल। हाँ बोलो। basically आजकल in Delhi region the the government is facing corruption charges, okay? तो उनका बेसिकली ये कहना है ईडी की रेट में या फिर सीबीआई की रेट में जो एविडेंस प्लांटेड है, तो ये सवाल उठता है द प्रोसीजर ऑफ रेडिंग। तो हम्म इसमें ये हेल्प करेगा रिकॉर्डिंग ऑफ क्राइम सीन्स एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेडिंग ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ये एक स्मूथ फंक्शनिंग प्रूव करेगी या फ्री क्या कहते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग प्रूव करेगी हाँ इफ दे आर रिकॉर्डिंग। बिल्कुल। ओके सो तो हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो जो देखा वो मतलब ने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट सब क्या कुछ सेक्शंस बचे हैं, लेकिन बेसिकली इस पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इन सब चीज़ों के बारे में बहुत दिया है, इलेक्ट्रॉनिक एडवांसमेंट और ये सब चीज़ों के बारे में, जो कि लीगल सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। उसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नाउ लेट्स लेट्स डू अ डिबेट अबाउट व्हाट वी ऑल लर्न, जो भी हमने सीखा पुराना भी, ठीक है, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस न्यू लॉ। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, सो तुम्हारे हिसाब से क्या इन लॉ की नीड है, क्या चीज़ें ज़रूरी है इन लॉ पे, क्यों ये लाए गए। सो मेरे हिसाब से न्यू लॉज की नीड तो बहुत ज्यादा थी, जरूरत क्यों थी, इसलिए थी क्योंकि जो सरकार ने भी इसका रीजन दिए है, गवर्नमेंट ने रीजन जो दिए जो कि बहुत ही वैलिड रीजन भी है, बिकॉज इट वाज अ कॉलोनियल लॉज। ठीक है, दो लॉज इसमें इनमें से जो थे कि सीआर सॉरी आईपीसी और एविडेंस, जो कि अब चेंज हो गए हैं, तो वो दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो उनका दिया वो लॉज थे। तो ये कॉलोनियल सिस्टम का लॉ था, और एक ये कॉलोनियल माइंडसेट को भी बढ़ावा देता है कि हमारा देश को आजाद हो चुका है, हम लोग ब्रिटिशर्स के अट्रॉसिटीज से निकल के बाहर आ चुके हैं, तो उनके दिए हुए लॉज को अब तक हमें कैरी करना थोड़ा ये गलत भी होता है। और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था नए लॉज के लिए, कि सोसाइटी चेंज हुई, इवॉल्व की है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जिस फॉर एग्जांपल आईपीसी 1860 में लाई गई थी, तो उस समय जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो रूल्स और लॉज उस समय 1860 में थे, उसके हिसाब से सोसाइटी में बहुत चेंज आ चुका है। सोसाइटी हमारी इवॉल्व की है, ग्रो की है, कॉम्प्लेक्स भी हो गई है। जिस समय की सोसाइटी उस समय थी, वैसी सोसाइटी अब नहीं है। तो अब बदलते हुए, जैसे सौरभ ने पहले भी नाना भाई पालके वाला के पॉइंट जो कि एक रखा था, विचार रखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत सही बात भी है कि हमारे नहीं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन मैं को, हमारे उस लॉज पॉइंट को को। जो मैंने बोला था मैं उसे एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि पॉइंट था द हाँ प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गो हैंड इन हैंड विद द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। दिस इज अ पॉइंट व्हिच सैन इज एग्जैक्टली। टॉकिंग अबाउट। ओके सो या लेट्स एग्जैक्टली। कंटिन्यू। तो ये ह्यूमन माइंड जो प्रोग्रेस हमारा हो रहा है, यहाँ ह्यूमन माइंड से मतलब हमारा सोसाइटी भी है, क्योंकि सोसाइटी इंडिविजुअल से बनती है। तो इंडिविजुअल की जिस तरह माइंड चेंज हो रही है, सोसाइटी वैसे डेवलप हो रही है, इवॉल्व कर रही है, तो पुराने लॉज को लेके आगे बढ़ते रहना यही सही नहीं होता है, क्योंकि नई सोसाइटी में नए लॉज की जरूरत पड़ती है। नए क्राइम्स भी नई तरह के हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स नई तरह की आ रही हैं, उनके सोल्यूशंस भी नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया एविडेंस में और सीआरपीसी में, टेक्नोलॉजी को ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा दिया गया है। तो इसका रीजन क्या है कि हमारे सोसाइटी में अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उसके यूजेस बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग पेपर पे लिमिटेड नहीं है, लोग फोन्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स पे शिफ्ट हो गए हैं। तो उसके हिसाब से इवॉल्व की हमारी सोसाइटी, इसीलिए लॉज भी नए आए, जो कि या अभी बेसिकली द होते हैं। थिंकिंग ऑफ क्रिमिनल्स आल्सो चेंज ना, जो एग्जैक्टली। सोचने का तरीका था, न्यू वे ऑफ क्राइम्स इवॉल्व हो चुके हैं, काफी ज्यादा हो चुके हैं। ओके हम्म। मेरे हिसाब से और चीज़ें ये भी थी कि देख जो हमारा लीगल सिस्टम उस पे लिखा गया है कि डायनेमिक, बहुत डायनेमिक लीगल सिस्टम, मतलब जो चेंज होता है, चेंज इन द सोसाइटी के आते आते, तो चेंजेस बहुत सोसाइटी में से बहुत। वैसे ये डिबेट के हटा के मोर अबाउट डिस्कशन है, इट इज़ नॉट लाइक डिबेट बट इज़ मोर लाइक डिस्कशन। सो जो हमने देखा कि जैसे नए लॉज जो भी हैं वो सभी टेक, जैसे कि सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी जो उस पे बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज इंक्लूड करी गई है, उस पे बहुत इंक्लूजन है नई नई चीज़ों को, वी आर टोटली अग्रीइंग विद यू। उसके अलावा वो कोलोनियल सिस्टम, जो कि सैन बता ही चुका है तुम्हें कि कोलोनियल सिस्टम कैसे चेंज हुआ है, और क्रिमिनल माइंड वाला दानिश ने बताया जैसे कि देयर इज अ चेंज इन द क्रिमिनल माइंड ऑफ इन द सोसाइटी। तो उसके साथ ही साथ ये नए लॉ की उसके साथ बहुत सारी ज़रूरत थी लीगल सिस्टम को एक और स्मूथ फंक्शनिंग के। इससे बहुत स्मूथ फंक्शनिंग तो मिलेगी, इतना तो गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो उसने लाए हैं।
लाएगा, मतलब बहुत सारे चेंजेस क्योंकि इसमें सेक्शन में दिए गए। और बिल्कुल। इसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो तो इट इज़ वेरी गुड, because sometimes there is no proper implementation even after there is a good laws. बट द क्वेश्चन अराइजेस दैट क्या हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर है इन लॉस को इम्प्लीमेंट करने का? मेन क्वेश्चन यही इज दैट यही ना, कि हमारे यही पास क्या स्ट्रक्चर है ये इतना फास्ट जुडिशरी वर्किंग में, या फिर समथिंग समथिंग जो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इस समय? वही ये क्या यही काम क्वेश्चन कर है रहे इस हैं पे हम इस ये पे? बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन ये है, क्योंकि जो प्रो गवर्नमेंट के लोग ये मानते हैं कि इजीली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो प्रो गवर्नमेंट नहीं है वो भी मानते हैं कि इजीली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। और इस पे बहुत ही बटे हुए व्यूज हैं, बहुत ही पोलराइज्ड व्यू है इसके ऊपर। क्योंकि मेरा तो हम्म, मानना है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, ये आया जैसे बेसिकली फ्यूचर की बहुत बात ज्यादा। करें। इम्प्लीमेंटेशंस में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि हमारा कंट्री वही। इतना बड़ा है, इतना डाइवर्सिटीज हैं। आपको हर स्टेट्स में अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग थिंकिंग के लोग, सोसाइटी भी डिफर करती है हर स्टेट में। तो हम्म इक्वली इम्प्लीमेंट करना इतने बड़े हो कि अब तक जो थी हमारी सोसाइटी आईपीसी पे इतने साल से चली आ रही थी, इतने सारे सेक्शन पे हम्म सारी चीजें आईपीसी के ऊपर होती थी। अब आप बोल रहे हो एक नई एक बुक, आप ये जो लॉज हैं लागू करना चाह रहे हो, तो हाँ कम्प्लीटली उसे चेंज करना इतने बड़े कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी के साथ बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली चेंज करने में। पर अगर ऐसा गवर्नमेंट करने में सक्सेसफुल होती है, इट विल बी वेरी गुड चेंज। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अच्छे अच्छे लॉज होते हैं लेकिन हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। वही इसमें मेन काम इम्प्लीमेंटेशन का ही है। और जैसे कि दानिश ने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं कि क्या गवर्नमेंट कोई स्ट्रक्चर देख रही है इम्प्लीमेंटेशन का या फिर ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अब अगली बार जब शायद बीजेपी जब आएगी अगली बार, या फिर जो भी गवर्नमेंट आएगी जो उसे इम्प्लीमेंट करेगी, उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा कैसा इम्प्लीमेंटेशन है सब चीज़ें। ये आया। उसका दूसरा क्वेश्चन और आता है। इस हाँ हाँ बोल। इफ अगर ये स्लो इम्प्लीमेंटेशन होता विथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लेते लेते, तो मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट करता सडन चेंज के, लाइक द सडन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बिल्स, न्यू बुक्स, वो बहुत मेजर स्टेप है। इफ हाँ और स्लो मेरे हिसाब से। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, हाँ, न्यू हाँ। लॉज, न्यू स्लोली स्लोली होता तो काफी सही होता, टोटली साथ में एग्री तो विद चलता यू। दानिश तो। यार, हाँ। वही। मेरा तो इस पे सवाल है दानिश, तुम आपसे कि आप जो बोल रहे हो कि स्लो इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हो आप, लेकिन बात यह है कि हमारा पूरा लॉ सिस्टम ही, अगर आप क्रिमिनल केसेस की बात करें जो कोर्ट हैंडल करेगा, वो पूरा इन्हीं लॉज पे टिका हुआ है, बेस यही है। तो स्लो इम्प्लीमेंटेशन से इन सारी चीजों में हैम्पर पड़ेगा, आपको तुरंत इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे केसेस पड़े हैं। अगर किसी तो केसेस को हैंडल करना है तो भारतीय न्याय संहिता को लेकर तो करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियसली, क्योंकि सारे क्रिमिनल केसेस इसी से हैंडल होंगे। तो slow implementation will not be a solution to तो it. Yes. तो सडन अब इम्प्लीमेंटेशन भी तो कंफ्यूजन पैदा कर सकता है दिमाग में, जो जजेस है मेरे एंड हिसाब से जो लॉयर्स है, मेरे हिसाब पॉलिसी से इस वाले मेकर्स है, पार्ट वो में बहुत कंफ्यूजन पैदा। मेरे हिसाब से इस वाले पार्ट में अडेप्टिबिलिटी का मेन पॉइंट आता है कि तुम भले स्लो हम्म, करो या फिर फास्ट करो, तुम कितनी ज्यादा अडेप्टिबिलिटी कर पा रहे हो, अडेप्ट कर पा रहे हो उस हम्म, लॉस को सोसाइटी। यस। मेरे अगर जैसे तुम तुरंत ही बहुत सारे चेंजेस लाते हो तो ये वो जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में थोड़ी हपड़ दपड़ रहेगी कि क्या चेंजेस आ गए, क्यों आ गए, ये सब चीज़ें। तो उन्हें थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। और जितने अच्छे से वो डाइजेस्ट कर पाए, जितने अच्छे से गवर्नमेंट सिंप्लीफाई करके उन्हें दिखा पाए चीज़ें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे को सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छा है इस लॉ जो जो बिल्स है, इसमें सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। हमने जैसे जो जो चीज़ें पढ़ी उसमें सिंप्लीफिकेशन है कहीं ना कहीं। और नए नए डेटा जो उन्होंने प्रोविजन में डाले हैं और नई नई डेफिनेशंस, वो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन दिखा रही है। मेरे हिसाब से टाइम लगेगा लेकिन अडेप्टिबिलिटी इज अ मेन फैक्टर आई थिंक, मेरे हिसाब से। Yeah. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट विजनरी? क्या ये फ्यूचर देखता है, ये जो लॉज बिल फ्यूचर को देखते हुए बनाए गए हैं या फिर ऐसे ही प्रेजेंट को देख रहे हैं बस? हाँ तुम्हारे हिसाब बिल्कुल, से क्या इट क्या? इट इज डेफिनेटली एंड फॉर श्योर विजनरी। क्योंकि आप सारे चेंजेस जो देखो, जो तीनों बिल्स में चेंजेस किए गए हैं, पुराने लॉज को के हिसाब से चेंज हुए हैं, ये बहुत ही फ्यूचर को देख के ही बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो जिस तरह हम्म से हमारा सोसाइटी ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स और कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ हमारी सोसाइटी ग्रो कर रहा है, जहाँ पे फ्यूचर में पेपर का यूज बिल्कुल ही बंद होने वाला है। सोसाइटी पूरी, हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री, वो टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। उसके प्रति जो गवर्नमेंट ने चेंजेस ला के इसकी एक शुरुआत की है, हम कहते हैं ना कि एक स्टेपिंग स्टोन है ये, कि आगे हम्म फ्यूचर के लिए।
तो ये इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि एक फ्यूचर में जो सोसाइटी कैसी होने वाली है, जिस तरह से सोसाइटी ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने शुरुआत की, चेंज की। तो इट इज डेफिनेटली वेरी विजनरी लॉस। या या राइट। हाँ, और जो जो प्रोविजंस इस पर डाले गए हैं, जो कि बहुत एडवांस चीज़ों को देखते हैं, जैसे चैट जीपीटी और बहुत सारे एआई वर्जन और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही, तो उन्हीं को देखते हुए इन्होंने भी अपने लीगल सिस्टम में वो चीज़ें डाली, जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो उनकी प्रोविजन डाल के उन्हें एक अच्छा एक वो दे दिया, स्पेस दे दिया मेरे हिसाब से। ठीक है, एक एग्जैक्टली। लर्न इन योर स्पेस, लाइक जो हमारी टैगलाइन है, एक तरह से उन्हें एक बिल्कुल। स्पेस दे दिया है चीज़ों को लर्न करने का। जैसे लोग भी अब ज़्यादा एडवांस हो गए, हम्म। सबके स्मार्टफोन है, सबको पता है, सबके नेट है ही। तो एक तरह से हम्म। कम्युनिकेशन जो चीज़ें होती है कम्युनिकेट करने की, वो एक अच्छी कर दी है, डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल। एक तो ये पॉइंट है। या बहुत जरूरी। विजनरी जो इसका वो है, ये डिपेंड इस पे भी करता है कि ये क्या अमेंडेबल है। इफ बहुत ज्यादा रिजिड रहेगा, हम्म बहुत ज्यादा रिजिड रहेगा तो हम्म। फिर लॉन्ग टर्म के लिए विजनरी नहीं रह सकता है। इसमें अमेंडमेंट्स इन फ्यूचर कितना हम्म एक्सेप्ट करता है, ये भी डिपेंड करता है। हाँ वही, जितनी ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। सिंप्लीफाइड और कौन। लेस या कॉम्प्लेक्स होंगी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। या रिजिड एंड फ्लेक्सिबल एट द सेम टाइम, ये बहुत जरूरी चीज है, नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ वही। उसके बाद हम्म। एक तीसरा क्वेश्चन आता है, इज इट जेंडर न्यूट्रल? जैसे कि हमने जेंडर देखे, न्यूट्रल। वुमेन बायस रहते हैं लॉज इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब वो डायरेक्टली लॉ हाँ, नहीं अप कहता, टू लेकिन सम दिखता एक्सटेंट। है। बोल। या अप टू सम एक्सटेंट जेंडर न्यूट्रल तो है, फुल्ली तो कह नहीं सकते इसको जेंडर न्यूट्रल। हाँ, फुल्ली तो नहीं कह सकते जैसे। जेंडर न्यूट्रलिटी में इसमें चेंजेस जो किए गए हैं, ये थोड़े पिछले जो आईपीसी थे या सीआरपीसी थे, उसके हम्म अकॉर्डिंग थोड़े से जेंडर न्यूट्रली ज्यादा है। एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ पहले तो बिल्कुल भी जेंडर न्यूट्रल नहीं थे, सारे वुमेन या बाइस ही लॉज हमारे पास थे। मेन के लिए हम्म कोई लॉज नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल रेप के लिए जो चेंजेस लॉज आए गए हैं, उसमें हम्म थोड़ा सा चेंजेस देखा जाएगा। आप अगर आप देखोगे कि मेन के खिलाफ जो रेप हो रहे केसेस आ रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा। अभी फिलहाल अगर सेक्शन में नहीं है तो केसेस में देखा जाएगा ये, जिस तरह से हम्म चेंजेस वो आ रहे हैं, जिससे कोर्ट में केसेस हैंडल होंगे। तो उसे इंट्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल 377 का हटना, ये भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसे महिलाएं यूज करती थी एज अ वेपन टू थ्रेटन द मेन, ठीक है, सोसाइटी में। तो हम्म इसे हटाना एक बहुत बड़ा न्यूट्रलिटी का सिंबल कह सकते हैं। कि ऐसे आप सेक्शंस को अगर आप रिमूव करते हो आईपीसी से, या फिर अब जो नई भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो ये जेंडर न्यूट्रलिटी का बहुत बड़ा सिंबल है, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरा एक क्वेश्चन था इस पर कि जैसे जो मैरिटल रेप वाला पार्ट है, तो तुम में से किसी ने उसे बहुत बिल्कुल। अच्छे डीप से पढ़ा है, डीप जो नया रिटेंशन हुआ है उसका वापस से, तो उस पर क्या बेसिकली ये भी चीज़ें आ अ, गई क्या, वो मैन जो मैन के साथ चीज़ें होती हैं वो उस पर भी इंक्लूड होंगी, जैसे उनको भी सुना जाएगा अच्छे से? पहले ऐसा नहीं था, मतलब मैरिटल रेप में हमेशा ज़्यादातर मैन ही गलत होते थे, वुमेन्स भी होती हैं कई पॉइंट बार। है पे, ये मैरिटल रेप अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। अगर आप गौर से देखोगे बीएनएस को, हाँ कि जो हम्म, पहली थी जो हमारे आईपीसी में थी, सेक्शन 376 एक्सेप्शन 2, जो कि हाँ मैरिटल रेप की बात करती थी, तो उसे हाँ अभी तक कंटिन्यूटी में रखा गया है। मैरिटल रेप को आप अलग से सेक्शन बना के आपने ये नहीं बोला कि क्राइम है, ठीक है, जिसकी बहुत डिमांड होती जा रही थी। लेकिन बहुत सारे कोर्ट्स ने ऐसे, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ठुकरा भी दिया था कि जरूरी नहीं है, नहीं होनी चाहिए। उसे नए बीएनएस में कंटिन्यूटी में रखा गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक मैरिटल रेप अब तक क्राइम नहीं है इंडिया में। जस्टिस ठीक वर्मा है। कमेटी ने ऐसा बोला था कि मैरिटल रेप क्राइम बना देना चाहिए, बट इसमें एग्जैक्टली। इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, अभी अभी तक नहीं हुआ है बेसिकली हम्म मैरिटल रेप का। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। तो ओके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो मेरे ये जो हाँ हम सेक्शन 377 की बात करते हैं, ये खुद मैरिटल रेप का एक ऑल्टरनेटिव वे था। ठीक है, कि आप अगर हम्म हस्बैंड वाइफ है, अगर शादीशुदा है, और उन्हें, क्योंकि इंडिया में जब तो मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं होता है, तो इस पे तो कोई केस हो नहीं सकते। वाइफ तो नहीं बोल सकती मेरा रेप हुआ है, अगर वो अब शादीशुदा हो। लेकिन हम्म, वाइफ इसके जगह पे, मैरिटल रेप की जगह पे अननेचुरल सेक्स का यूज करती थी, सेक्शन 377, हाँ जो कि एक बहुत ही नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस था, सॉरी, ऑफेंस है। कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस था। तो उसे हटाना एक बहुत बड़े जेंडर न्यूट्रलिटी की सिंबल है, कि उसे हट रिमूव किया गया है। हम्म तो मेरे हिसाब से इसके दो बहुत चीज़ होंगी कि जेंडर न्यूट्रल है भी और नहीं भी, कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं नहीं है। दोनों अब तरफ तुम देख सकते हैं। एडवांसमेंट तो हुआ है, बेसिकली एडवांसमेंट तो हुआ है एडवांसमेंट हाँ वो
टोटली एग्री, क्योंकि Exactly. प्रीवियस सोसाइटी जो थी मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां तो थी प्रीवियस जितने भी लॉ थे, तो थोड़ा बहुत बढ़ावा एग्जैक्टली, हुआ हाँ है, थोड़ी बिल्कुल। बहुत चीज अब वो इम्प्लीकेशन के बाद ही पता लग पाएगा कितना, और प्रेसिडेंट से बनने शुरू होंगे उसके बाद ही हम पता लग पाएगा कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो हम आते हैं फिर अब बिल्कुल। नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा व्हाट इज द करेंट स्टेट ऑफ दिस बिल। तो करंट स्टेटस का भी फिलहाल ये है कि हमारी जो बिल है ये दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट से पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है, यहाँ तक कि इस पे प्रेसिडेंट का एसेंट भी आ चुका है, द प्रेसिडेंट हम्म। द्रौपदी मुर्मू ने इस पे साइन भी कर दिया है। और अब हम्म। इसके बस इम्प्लीमेंटेशन बची है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस के बाद होने की गुंजाइश है। हाँ। इलेक्शंस के बाद अ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी, एग्जीक्यूशन इसका प्रॉपरली हो जाएगा। तो अब ये बिल पास हो चुका, अब ये एक लॉ बन चुका है, ये बिल नहीं रहा, ये लॉ बन चुका मेरा एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन था, जैसे कि ऐसे मान लो अगर जो भी गवर्नमेंट है जिसने ये सारे बिल लाए, इंट्रोड्यूस करे, पास करवाए और प्रेसिडेंट का एजेंट लिया, मान लो गवर्नमेंट अगला इलेक्शन जीतती नहीं, तो फिर क्या जो नेक्स्ट है। गवर्नमेंट है जो उसके खिलाफ है वो इन बिलों को प्रेसिडेंट के हम्म। एसेंट होने के बाद भी रखी रहेगी, या फिर उसे वापस कहेगी कि इसे वापस रिव्यू करो राज्यसभा और लोकसभा में जाके, भिजवाएगी इन बिलों को वापस और फिर रिजेक्ट करवा के ऐसा कुछ करेगी? मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, बट मेरे आई हिसाब थिंक से जो, हाँ एग्जैक्टली, दानिश प्लीज। कि हम्म। इतना पॉजिटिव इसका वो बन चुका है, इमेज बन चुकी है इस बिल की, कि हम्म। पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए इसको कंप्लीटली हटाने की। पॉसिबल नहीं हो सकता, मे बी कुछ अमेंडमेंट्स करके, लेकिन उनको तो फिर इसको लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी इमेज बन चुकी है, बहुत ही अच्छा प्रमोशन बाय दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ दिस बिल हो चुका है पहले से ही। तो हम्म। पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी, थोड़ा मे बी तो कुछ अमेंडमेंट्स कर लें या कुछ समथिंग कर लें, बट उनको करना तो पड़ेगा ही लागू इसको। वो तो है। एग्जैक्टली। ओके। अगर इसकी लीगैलिटी में हम जाए कि अगर अगली गवर्नमेंट, जैसा सौरभ ने क्वेश्चन किया, अगली गवर्नमेंट अगर दूसरी पार्टी की आती है, जो उसने, अगर फॉर एग्जाम्पल बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आती है, तो इसकी हम्म। लीगैलिटी में अगर जाए तो अगली गवर्नमेंट ये कर सकती है कि आप इसके, अब तक ये 9th शेड्यूल में से ऐड नहीं किया गया है, हम्म। तो वो उससे क्या होता है कि आप जुडिशियल रिव्यू के लिए इसे जा सकते हो। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर दूसरी आती है तो वो इतना तो कर सकती है, अगर उनको ये बिल हटाना ही होगा, क्योंकि ये एक्ट हम्म। बन चुका है, बिल तो रहा नहीं है, उन्हें लागू तो हम्म। करना ही पड़ेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट कर सकती है कि जुडिशियल रिव्यू में दे दे, और सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगे तो सुप्रीम कोर्ट इसे हटा जरूर सकती है। तो इतना हो सकता है, ओके। लेकिन गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट थोड़े बहुत करेगी, लेकिन जैसे दानिश ने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि इसका एक पॉजिटिव इमेज बन चुका है, तो इसे हटाना तो सही नहीं रहेगा, और गवर्नमेंट हटाएगी इसे। और आई थिंक अगर जैसे प्रेसिडेंट ने कुछ सोच समझ के इसे असेंट दिया होगा, उसको रिव्यू तो गुस्सा करा होगा, तो एक तरह से इसे फिर बिल्कुल बिल्कुल। प्रेसिडेंट की खिलाफ भी एक उंगली उठ सकती है कि तुमने कैसा करा जो इतना बेकार बिल था। हाँ। ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल सही बात। ना मतलब मतलब प्रेसिडेंट पे कोई प्रेसिडेंट पे तो इस कोई पे क्वेश्चन नहीं हो सकता, कोई कोई क्वेश्चंस हाँ, नहीं मैं है, क्वेश्चन तो, क्योंकि यार एक यार ऐसे दे ही। आर पपेट बेसिकली। ओके। एग्जैक्टली, हाँ। मेन क्वेश्चन डोंट यही यही है डोंट होगा कि से इसकी दिस ये पपेट्स बहुत वर्ड। पॉपुलर बिल्स है, बहुत पॉपुलर बिल्स है। अगर कोई चेंज इन गवर्नमेंट भी होता है तो उनको करना पड़ेगा विथ सम अमेंडमेंट्स में भी, बट करना तो पड़ेगा। ओके। एग्जैक्टली। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज आफ्टर इफेक्ट्स। क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, तुम्हें क्या लगता है? तो पहला इफेक्ट जो होता है वो कि अफेक्टिंग लीगल सिस्टम एंड लॉ स्टूडेंट्स का, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हम्म। हमारे लीगल सिस्टम कैसे चेंज होने वाला है इन 3 बिल्स के बाद, और लॉ स्टूडेंट, जैसे हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी हम्म। लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस बिल का। तो लीगल सिस्टम में डेफिनेटली चेंज तो होने वाला है, क्योंकि जो नए बिल्स आएंगे इसमें चेंजेस जैसे हमने डिस्कस किए बीएनएस में, बीएनएसएस में और बीएसए में, तो चेंजेस हमने डिस्कस किए, वो सारे चेंजेस जब इम्प्लीमेंट होंगे, फॉर एग्जाम्पल बीएनएस में जो हमने बोला कि जो भी हमने डिस्कस की कि C-17 हटाया जा रहा है, या फिर आपने टेररिज्म की इनकॉर्पोरेशन की बात करी, हमने हमने कम्युनिटी सर्विसेज की बात करी है, तो जैसे इन सारी चीजें एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, इसका जब ये लागू हो जाएगी प्रॉपरली, तो लीगल सिस्टम में डेफिनेटली एक नया लीगल सिस्टम बनेगा, जो कि पहले वाले से डेफिनेटली बेटर होगा, क्योंकि हम्म। जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं तीनों एक्ट्स में, तीनों बिल्स में, अगर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो हमारा लीगल सिस्टम और डेवलप्ड होने वाला है, जब हमारा ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस लीगल सिस्टम बनेगा पुराने से। और लॉ स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट ही कहेंगे कि पड़ने वाला है लॉ स्टूडेंट्स पे, क्योंकि उन्हें फिर से सारे जो जो लॉज हैं इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो लॉ स्टूडेंट्स तो हम्म। ये कहें कि उनके लिए नेगेटिव चीज है।
तो ये चीजें होने वाली है, क्योंकि अगर जो एडवोकेट्स हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनके लिए भी एक नेगेटिव चीजें लोग के हिसाब से हाँ, होगा, अभी क्योंकि कुछ वो इयर्स, लोग कुछ समय के लिए बेसिकली हम्म जजेस को, लॉ स्टूडेंट्स को एंड लॉयर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कॉज बिल्कुल हम्म बिल्कुल। सेक्शंस में भी काफी चेंजेस हुए हैं, नंबरिंग ऑफ सेक्शंस में काफी चेंजेस हुए हैं। तो रेफरेंस के हम्म, लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी स्लो प्रोसीडिंग्स भी हो जाए, 2 साल हम्म 3 साल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसीडिंग से थोड़ा लैग करने लगे, बट क्योंकि स्लोली हाँ स्लोली एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत फास्ट वास्ट लॉज होंगे। है ना ये, वास्ट। एग्जैक्टली, बहुत ही हाँ, वास्ट लॉज है, तो इन्हें समझने में बहुत टाइम जाएगा। बट कुछ समय के लिए, मे बी 2 3 इयर्स 4 इयर्स टाइम लगेगा। जितने भी लीगल बिल्कुल सिस्टम में बिल्कुल। जितने भी वर्कर्स हैं, और बेसिकली स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम तो अभी स्टार्टिंग में होगी ही, काफी होगी। हम्म कॉज जो बिल्कुल सिलेबस है काफी बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। और जो पहले से ही फोर्थ या बिल्कुल। फिफ्थ ईयर में जिन्होंने पढ़ चुका है सब चीजें, उनके लिए और टफ हो जाए क्या पता, क्योंकि वो हाँ, जस्ट अभी क्रॉस हुए उनके लिए होंगे ज्यादा दिक्कत सीआरपीसी होने आईपीसी। वाली है। या राइट, बेचारे पढ़ के इंट्रोड्यूस हो भाई जाएंगे। पूरी एग्जाम एग्जाम देख के निकले होंगे सीआरपीसी आईपीसी का, और उनको हाँ मालूम पड़ा कि अभी वापस से पढ़ने बेचारे। पड़ेंगे हमें नए लॉस, तो थोड़ी हाँ मोए मोए हो गया उनका, तो लेकिन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मोए अब मोए। हम जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा न्यू पीओवी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी में क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं हमारे नए बिल्स के बाद। तो जुडिशरी में चेंजेस मेजरली जो होंगे, ई कोर्ट्स के वजह से बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स। तो ई हम्म कोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी जैसे गवर्नमेंट ने ई कोर्ट्स को शुरू किया था, जैसे कि हमने देखा कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में और मुंबई में भी ई कोर्ट की शुरुआत हुई थी। एक आइडिया रखा गया था और एक बेसिकली शुरुआत की गई थी। लेकिन जैसे हमने बात की एविडेंस और सीआरपीसी में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, उससे ई कोर्ट्स की जो आइडिया थी उससे बढ़ावा मिलेगा और वो आगे और बढ़ सकती है। क्योंकि एक हम्म ये आइडिया सिंपली 4 शहरों में दिया गया था, लेकिन जिस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की गई है तीनों बिल्स में, इससे ई कोर्ट्स में ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और ये आगे और नंबर इसके बढ़ सकते हैं, तो ये जुडिशरी में एडवांसमेंट होंगे। और हमने नेगेटिव पॉइंट पे तो बात की, जिसको दिक्कत होने वाली थोड़ी होगी, इन्हें सारे बिल्स को समझना पड़ेगा, वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव भी हाँ, चीज देखने को मिलेगा, इफेक्ट होगा। ई कोर्स में एक ये भी इशू होता है, मतलब काफी अच्छी है, इन फ्यूचर के लिए काफी अच्छी, बट प्रेजेंट में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज अभी आ रहे हैं। बिकॉज ड्यूरिंग द कोरोना द प्रोसीडिंग्स वर ऑनलाइन, ओके, एंड माय फादर हम्म इज अ लॉयर। तो जो पुराने मतलब जो न्यू एज लोग। के नहीं है, उनको तो बहुत इशू आ रहा है। अभी तो हम्म काफी इश्यूज आ रहे हैं उनको। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत बड़ी है, ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत बड़ी है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है ही नहीं। उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि ऑनलाइन वो कर सके, केसेस हैंडल कर सके। केस फाइलिंग में बहुत इश्यूज आ रहे थे। केस फाइलिंग में काफी इश्यूज स्टार्टिंग से आ रहे हैं। तो अगर ई कोर्ट्स पे शिफ्ट करना है, तो टाइम देके एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा। आई थिंक फॉर ई टेक्नोलॉजीज कोर्ट्स ढेर सारे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे या। गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड सम बजट्स, उनके सेपरेट बजट्स तैयार करती है गवर्नमेंट ई कोर्ट्स के लिए। अभी या तो रिसेंटली कुछ हम्म, या फिर कुछ करोड़ एग्जैक्टली। का बजट उन्होंने दिया है, थर्ड थर्ड टाइम बजट या था शायद ये, उनको प्रोवाइड करा गया है कुछ 7 कुछ थाउजेंड था, पता नहीं, आई थिंक समथिंग फर्स्ट लाइक तो दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा करना पड़ेगा, देन हम्म ट्रेनिंग भी मतलब करनी पड़ेगी, हाँ, तब न्यू काफी लॉयर्स को या अच्छा, फिर ऐसा कुछ, हाँ, या जजेस एंड फ्लुएंट लॉयर को नई चल नई ट्रेनिंग सकता देनी पड़ी, हाँ। है, फ्लुएंट काफी हो सकता है ये। फिर प्रोसीडिंग्स बहुत हाँ फास्ट हो जाएंगे, नो डाउट। तो ये एक तरह से विजनरी भी है ना, इसी तरह से कि अगर हाँ, बात की काफी फ्यूचर के लिए बहुत विजनरी सही तो है। काफी है। जितने भी डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट के द्वारा है, वो काफी विजनरी है। हम्म पेपरलेस जितने भी चीजें हैं। ओके, सो एनीथिंग, बिल्कुल। कुछ और ऐड करना है क्या इसमें, मतलब पीओवी में और क्या, जुडिशरी का पीओवी ई कोर्ट्स के अलावा कुछ। हमने नेगेटिव पॉइंट्स की बात करी कि जो जजेस को दिक्कत आने वाली है तीनों लॉज के कारण, हाँ तो उसकी ही बात है। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चेंज इन सोसाइटी। तो बेसिकली जब लॉ इम्प्लीमेंट होंगे, चेंज, सोसाइटी में चेंजेस तो बहुत आने वाले। पहली बात तो उन्हें अडेप्टिबिलिटी कितनी है, वो कुछ कितनी जल्दी अडेप्ट कर पाए उन चीज़ों को। दूसरी बात है, एक सोसाइटी कि में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, जैसे हम एडवांसमेंट तो बहुत सारी चीज़ ले आए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या फिर टेक्नोलॉजी में बहुत सारा एडवांसमेंट ले आए,
तो कहीं ना कहीं उन सब लोगों को जिसके पास अभी तक टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं है, हाफ ऑफ द पीपल्स इन इंडिया डजन हैव फोन, स्मार्टफोन नहीं है उनके पास। स्मार्टफोन कई लोगों के पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। तो उनके लिए एक तरह से उनके लिए तो उनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उन्हें तब भी वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो पहले वो करते हैं। तो एक तरह से सोसाइटी में चेंजेस एक लाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादातर लाएगा जो जिनके ऐसे चीज़ें हैं, जिनके ऐसे सारे एप्लीकेशंस हैं, लाइक स्मार्टफोन, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड बहुत जो मतलब कम्युनिकेट कर पाते हैं, लाइक रिच पीपल्स इन द सोसाइटी, उनके लिए बहुत अच्छा है सारे इम्प्लीमेंटेशन। और जो पुअर पीपल है उनके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें और अच्छी, जैसे उन्हें और अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, उन्हें और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो इन सब चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने और अच्छे से सबको बेनिफिट के लिए हो पाए, सबके लिए बेनिफिट हो पाए, बेनिफिशियल हो पाए। तो वही है कि चेंज इन सोसाइटी 2 टाइप से हो गई, एक तो अडैप्टेबिलिटी और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू द एक ही काइंड के पीपल्स के लिए। दूसरे काइंड्स के पीपल के लिए बहुत टफ हो जाएगा इनको इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद चेंज इन सोसाइटी में लाइक सोसाइटी इज़ वेरी डायनामिक, वी ऑल नो। सोशियोलॉजिकल लेक्चर नहीं, लेकिन बट तब भी सोसाइटी वी ऑल नो दैट सोसाइटी इज़ वेरी डायनामिक। ये चेंज होती है विद द चेंज इन टाइम। तो अब जैसे-जैसे चेंज हो रही है, उसके हिसाब से तो ये परफेक्ट लॉ है कि आगे जाके जो भी चेंजेस आने वाले हैं, लाइक फ्यूचर में एआई और बढ़ेगा और टेक्नोलॉजीज़ आएँगी और कनेक्टिविटी बढ़ेंगी और नए-नए नेटवर्क्स, जैसे 5G स्पेक्ट्रम भी बढ़ रहा है, 5G की टेक्नोलॉजीज़ नई-नई आ रही है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मेरे हिसाब से ब्रिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। This is all that what I really want to express my views on that. If you anyone want to add तो something, सौरभ, तो मेरा सवाल है, anything? तुमने जो भी बताया था सोसाइटी में चेंज को लेके, तो व्हाट डू यू Hmm. थिंक द चेंज विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव और अ न्यूट्रल चेंज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिक्स चेंज? व्हाट आर योर व्यूज ऑन Okay. दिस? ओके, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया पॉजिटिव में कि एक सिंगल टाइप के लोगों के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। मैं अब इसे काइंड ऑफ पीपल में बांट रहा हूँ, जैसे कि कैसे कैसे काइंड, पुअर, रिच एंड मिडिल क्लास। इन चीज़ों में बांट के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो रिच पीपल्स हैं उनके लिए बहुत आसान है, इनके सारी चीज़ें एक्सेसिबल है, उनके लिए बहुत अच्छा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके लिए बहुत सही है। लेकिन जो जो पहले से बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, उनके लिए, जिनके जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, उनके लिए कोई चेंजेस है ही नहीं। मतलब वो पहले भी जैसे थे, अभी भी वैसे ही। हाँ, हालाँकि उन पे पर थोड़ी यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती तुम है। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हो ना? अगर हम लोग हाँ, देखें कि सिर्फ, हाँ, आपने बोला कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण ये हाँ, थोड़ा ठीक नेगेटिव है। है, ओके, पर मैं सारे बाकी एस्पेक्ट चेंजेस बता जो रहा हूँ। हुए हैं, हाँ जी, बाकी चेंजेस पॉजिटिव इन हम्म, सोसाइटी, लाइक देयर इज़ अ न्यू प्रोविजंस अबाउट marital rapes and new provision of seditions, which I think which really brings the बिल्कुल, change the definition of the of all these topics. Like पहले ऐसी चीजें नहीं थी जो कि हमें इतने अच्छे से बताई जाती हो, या फिर इतने सिंप्लीफाई में जो ये सारे लॉज में बताया गया। सिंप्लिसिटी बहुत है, हम्म, मतलब सिंप्लिसिटी और एक्सप्लेनेशन अच्छे से करा गया है। तो एक तरह से ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इन द सेंस कि ओके। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में आ सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ये हो सकते हैं, मेरे ख्याल में इम्पैक्ट ये हो सकते हैं कि जैसे हमने बात करी कि टेक्नोलॉजी, तूने टेक्नोलॉजी की बात करी, वो भी एक हम्म, चेंज ही होता है। फिर उन्होंने उसमें बताया हम्म, कि ऐसे एक सर्टेन लेवल ऑफ सेक्शन में वो एक गलत इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो लोगों हम्म, तक पहुंच नहीं पाएगा। एक्सेसिबिलिटी उनकी बात अगर हम करते हैं कि हाँ, अगर एफआईआर की एक्सेसिबिलिटी की बढ़ रही है, तो वो हम्म, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो घट भी रही है थोड़ी सी। तो हम्म, वो एक टू वेज वर्क करता है, हम बोलते हैं ना कि वो बोथ डबल साइडेड ब्लेड की तरह काम करता है ये। तो हाँ। उस तरह से ये थोड़ा नेगेटिव ये है जो हमारे आफ्टर इफेक्ट्स होने वाले हैं। लाइक एक और पॉइंट था जैसे नेगेटिव पॉइंट में, कि जैसे जैसे दानिश ने बताया कि आजकल जो पुरानी जनरेशन के लॉयर्स हैं, एक तरह से उन्हें अडेप्टिबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आएगी नई टेक्नोलॉजीज को। भले ही ला चुके हैं सेक्शंस, या फिर बिल्कुल भले ही ला बिल्कुल। चुके हैं सारे बिल्स या लॉ, लेकिन तब भी थोड़ा उन्हें कोई हम्म, फर्क एक तरह से क्या ही पड़ेगा कि लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें एकदम परफेक्टली अच्छा लगेगा, ये सारी चीजें नई नई चीजें देखते हैं। लेकिन जो जो इस पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या फिर जो जो नई नई फ्यूचर एडवांसमेंट, फ्यूचर चीजें जो लाई गई, उनमें थोड़ा-थोड़ा एडैप्टेबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे एफआईआर, इन सब चीज़ों पे इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर और समन्स, कई लोगों के पास नहीं होती सारी चीज़ें, इसलिए वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन सकता है। उसके अलावा न्यूट्रली
न्यूट्रल इज न्यूट्रल सबके लिए, जैसे सबके लिए कोई कोई न्यूट्रल मिडिल क्लास है, फिर व्हाट वी कॉल इट, न्यूट्रल इज न्यूट्रल, एनीथिंग व्हिच वी वांट टू Yeah, ऐड okay, इन ऑन दिस। understood. नाउ द फोर्थ पॉइंट। न्यूट्रल इन केस में, क्योंकि दो हर सेक्शंस को लेके वो बराबर की सोचता है, और हाँ, जेंडर एक तरह इक्वालिटी जेंडर की बात इक्वालिटी करते को हैं, उसने जेंडर थोड़ा बहुत न्यूट्रल वो भी करा है। है। एग्जैक्टली, हाँ। नाउ टू द फोर्थ क्वेश्चन, विजिबल अपोजिशन इन हिट एंड विजिबल रन लॉ। ऑपोजिशन। या तो बेसिकली ये आईपीसी का 304A में था, ठीक है। इफ कोई एक्सीडेंट कर देता है ऑन द रोड, किसी को हिट करता है एंड रन्स अवे, तो उसको 2 साल का इम्प्रिजमेंट था, ओके। एंड क्या कहते हैं, 2 साल के इम्प्रिजमेंट में ये होता है कि खड़े खड़े बेल मिल जाती है। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, हम्म। खड़े खड़े बेल मिल गए, मतलब इजिली बेल मिल जाती है विथ सम फाइन्स, ओके। और अब इसमें मेन ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्या उसका इंटेंशन था एक्सीडेंट करने का, उस ड्राइवर का बेसिकली क्या इंटेंशन था एक्सीडेंट करने का। जो न्यू लॉज आए हैं उसमें यह है कि इफ किसी इंसान से एक्सीडेंट हो जाता है, इफ समवन नॉट इंटेंशनली हिट्स द, मतलब एक्सीडेंट हो गया उससे, तो उसको 10 साल का इम्प्रिजमेंट विथ 7 लाख रुपीज, ओके, उसको पे करना एज अ फाइन, उसको पे करना पड़ेगा। तो मेन क्वेश्चंस ये आते हैं बेसिकली, देयर वर ऑपोजिशन बाय द ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि बेसिकली वो तो हैं गरीब, और उनका कोई इंटेंशन था नहीं किसी का एक्सीडेंट करने का। जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, पहली बात तो उनकी कंडीशंस भी खराब होती हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनकी जो केबिन होता है उसमें ना तो एसी होती है गर्मियों में, उनकी जो ड्यूरेशन होती है ड्राइविंग ड्यूरेशन 12 आवर्स तक इंक्रीज कर देते हैं उनके ओनर्स, कि उनको 12 घंटे 8 घंटे चलाने हैं गाड़ी है विदाउट एसी, विदाउट फेवरेबल कंडीशंस। तो उसमें तो चेंज चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात उनका इंटेंशन नहीं था, इन केस रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो फिर वो दे विल फेस 10 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड 7 लाख रुपीज एज अ फाइन, ओके। तो इसमें हाँ, एक प्रोविजन ये भी था कि इफ वो रुक के वहां पे पुलिस को कॉल करते हैं एंड मदद करते हैं उस पर्सन की, तो 5 years तक की इम्प्रिजमेंट होगी उनको, मतलब हाफ हो जाएगा। ओके। तो सो बेसिकली सवाल वही ये है कि जो उठता है। जो हाँ बीएनएस लॉ हाँ पे हाँ। जो प्रोविजन दिया है, हिट एंड लॉ का, हिट एंड रन लॉ का, हम्म, वो बेसिकली एक अब रिसेंटली अपोज करा गया उस लॉ का। विजिबल अपोजिशन में पहले ही हाँ, दिख रहा है इसके आफ्टर आफ्टर इफेक्ट काफी रिसेंटली, ज्यादा। काफी ज्यादा अपोजिशन है। और लेकिन उसके बाद होम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स है उन्होंने इसको वापस कंसिडर करा गया है हाँ कि इस पर कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस लाए लाए जाए। हाँ ओके हाँ। नाउ, ओके सो विजिबल अपोजिशन ऑफ हिट एंड रन लॉज, जो कि हम देखे कि क्या क्या है, हमने रिसेंट न्यूज में देखा। सो सारे आफ्टर इफेक्ट, इसके बाद भी बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे होंगे इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो हमें बहुत सारे दिखेंगे भी। सो नाउ अभी के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि ये ओपिनियंस। तो सो गाइस, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ऑल these लॉज एंड बिल्स? तो मेरे ओपिनियन में ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो भी इसके पॉजिटिव साइड्स तो बिल्कुल हैं, ये विजनरी है, जेंडर न्यूट्रल भी है, इसकी नीड भी बहुत ज्यादा थी। तो मेरे हिसाब से ये एक ओपिनियन मेरा पोलराइज है दोनों पार्ट्स में, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड से पोलराइज ओपिनियन है मेरा, कि इसकी जरूरत तो थी ही, ऑब्वियसली जरूरत थी होगी कॉलोनी लॉज से। लेकिन आपने मेरा इसका ओपिनियन ये है कि आपको अगर चेंजेस लाने थे लॉज में, तो आप आईपीसी को ही अमेंड कर सकते थे, कंप्लीटली आईपीसी राइट। को बदल के बीएनएस को ला देना। ये थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया, और इसकी जरूरत भी मेरे को नजर नहीं आई, क्योंकि आपको अगर लगता है आपकी कॉलोनी लॉस थी, तो आप आईपीसी को आराम से अमेंड करके जिस लॉस की जरूरत थी उसको आप रिपीट कर सकते थे, जिन लॉस को आपको लानी थी उसे आप ऐड भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपको टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को बढ़ाना था, तो आप एविडेंस में ही इसे ऐड कर देते कि हाँ अब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके लिए आपको नए लॉस को बदल के नया इंक्लूडिंग पूरा ही चेंज कर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके बहुत रेपरकशन भी होने वाले हैं। तो मेरा ओपिनियन इसमें ये रहेगा। यस। दानिश, व्हाट इज योर ओपिनियन? तो बेसिकली मेरा भी अप्रॉक्स सेम ही ओपिनियन है कि इफ उनको कोई द करंट गवर्नमेंट को कोई अमेंडमेंट, मतलब द चेंज लाना था कोई, तो आईपीसी में अमेंडमेंट्स ला सकते थे, सीआरपीसी में अमेंडमेंट ला सकते थे।
देयर वाज, मेरे हिसाब से इतना बड़ा ह्यूज स्टेप लेने की जरूरत नहीं थी, बट एक्चुअली द करंट गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है, द इरेजिंग द कॉलोनियल स्टफ्स, तो उसमें चाहते तो हटा सकते थे, आईपीसी से स्टफ्स हटा सकते थे कॉलोनियल उसके, बट पूरा हटाना, और इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो सकती है सोसाइटी में, हाँ वही, एंड या राइट, मैं भी तुम उसमें दोनों के अमेंडमेंट्स पॉइंट से काफी अच्छे टोटली, अच्छे आ सकते थे। हाँ मैं भी तुम दोनों के पॉइंट से टोटली एग्री करता हूँ। उसके अलावा जैसे कि उसने बताया, दानिश ने पुराने पिछले पहले पहले कुछ बताया था कि ऐसा कि जो इम्प्लीमेंटेशन का जो तुम बोलता था, स्लो इम्प्लीमेंटेशन है फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो वही हाँ हाँ। जैसे भी इम्प्लीमेंटेशन होगा उस पर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और अडेप्टिबिलिटी में तो आती है। तो बस इतना ज़रूरी नहीं था। और एक और पॉइंट, जैसे दानिश ने एक और पॉइंट ऊपर बोला था शायद कि या दानिश या सैन, तुम दोनों में से किसी ने बोला था कि जैसे कि वो जो लीगल सिस्टम होगा 1-2 साल के लिए थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, हाँ और हाँ। वहाँ पर अडेप्टिबिलिटी बहुत बिल्कुल प्रॉब्लम हाँ। आएगा। तो उस पॉइंट में भी बहुत टोटली एग्री करता हूँ कि थोड़े चेंजेस होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ वीक पॉइंट तो रहते हैं हर किसी चीज़ के, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों रहते हैं। तो ओपिनियन वाइज इट वाज गुड, इट इज गुड होप लॉ। होप तो यही रहेगी कि कुछ समय के बाद फास्ट होगा, होप्स तो हाँ, यही है फ्यूचर होप वही। कि कुछ समय बाद फास्ट तो होगा, बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सबको, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा, खास तौर हम्म। से पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फेस ज्यादा करना पड़ेगा। Okay, so at so now let's conclude this video. If you like this video, then like it. एंड सब्सक्राइब इट And comment. एंड शेयर Thank you ऑल्सो। for watching. Thank you for थैंक यू। watching.